जय माँ। तो अभी हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे और शाम को एक रिक्वेस्ट आई है, कल भी थी वो बुक 11 सावित्री से, तो वील डू दैट। आई थिंक वो एक प्रॉपर कल्मिनेशन। हाँ हाँ, मेन है बुक 11 एवरलास्टिंग डे। हाँ, एवरलास्टिंग डे, करेक्ट। तो दैट वी विल डू, दैट विल बी ए गुड कल्मिनेशन ऑल्सो, क्योंकि सब भविष्य की चिंता करते हैं। तो डेस्टिनी हो गया, इमॉर्टल सोल हो गया, लव तो सब जगह है, लव के बारे में और भविष्य के बारे में। ओके, सो we'll start some questions that were left yesterday and then we go to today's questions. How to know when a physical discomfort or illness is actually a resistance from the body? How to reduce resistance? So, more than resistance, it is a disharmony. So, disharmony in the body can arrive because of different reasons. It can arrive in the purely physical manner also. It's not कि उसके नीचे there has to be a psychological cause. It can be purely physical. For example, if we do too much output from the body, but there is little energy which is coming in. So the transaction of energies can be very imbalanced, like overworking can create fatigue and it can lead to illness, because fatigue frays the nerves. And when the nerves are frayed, it opens the door to illnesses. So it's not that, I'm glad the question is very well framed. The resistance from the body. So basically, the body's capacity is limited and what is being expected of it is much more. So one has to learn to recuperate, because each body has its own unique capacity, and slowly increase it. So to increase it, that's why there are physical exercises, regular physical exercises. The simplest of all is at least a walk. And walk, combine it with some deep breathing, combine it with some asana. So slowly the physical activity will increase, physical capacity will increase. And call her peace and strength. Call the mother while one is engaged in the physical exercises. Then it helps very beautifully, because then the body is in a state of being receptive. If we are sitting and calling, then body is sleeping. So whatever comes, it's not able to receive. So while taking a walk or whatever exercise one chooses, one should aspire and call the mother's force, her strength, her peace into the very body. So this is the basic method. In my work as an applied, I encounter women who have suffered themselves abuse and continue to do so. Many lose faith in God. How to heal, infuse hope when they are closed spiritually? We don't need to do that. See, everybody is not ready for this. Itself is strange that one loses faith in God because of something happening to oneself. I mean, that means the idea of God itself is completely. As God is like at labor to all the time look after us, protect us. So challenges come in life so that we may grow. So, and it's not an automatic process that it's God's job description to make sure nothing evil happens. That way, so much evil is anyways happening. One doesn't have to personally experience evil to think like that. Then one should really think deep. Yes, there is. What is the reason for evil? It's not only when I suffer that I say, oh, why it happened to me. After all, there is suffering and evil in the world, and we need to ask the divine about it. But it's not like I just blame him and done with it. No, we need to try to understand. That's the way. Like some people just blame a doctor. You prescribe this medicine. You have to try to understand why things happened, what was the intent behind. All this one has to take into account. But that's a different subject. But challenges come in life, whether we believe in God or not. Challenges come in life so that we grow. So, if one is being repeatedly abused, that means one didn't take the lesson, one didn't grow. Either stronger, didn't develop the capacity to say no firmly.
to resist evil, to refuse, and no God will replace it, because that is the process of evolution. It is regardless of belief in God or not. But yes, if you have faith in the divine, which is a different thing altogether than just believing, then yes, interventions take place and course of things may change. So that's how they have to understand. Spirituality is not for everyone, and there is no need to, ensure that we are not here for converting anyone to any kind of thing. But the minimum that human beings must have is that they should learn from their situations and grow equipped to face the situation. If spirituality helps you to equip facing the situation, so be it. And actually it equips you better. You become calmer, you feel stronger, you feel supported, but you have to face the situation. It's not like God comes and does change everybody's mind for you. No, that happens, but that's very rare. For somebody who has given oneself completely to God, that's okay. But you have to face the situation. If you have turned to spirituality, it's a vague word, but let's say turn to God, you'll feel supported. Sri Krishna did not ensure that Arjun's son will not die, nobody will die because Arjuna has given himself to him. No, Arjuna has to face what he has to face. So challenges of life come only to help us grow, make us grow more conscious. So there are people who, man or a woman, who end up landing in the same problem again and again. It's because they have not grown conscious that there is a problem inside me which I need to understand and tackle. Why am I landing up with the same problem? So they have to see, grow conscious, then whatever they have to do with it is a different story. So that's the way to go about it. Look inside, take it as a challenge, grow conscious. So the task of the therapist is to help the person grow conscious. And then teach strategies or ways by which one can actually want to equip oneself so that when something happens, one is able to go past it. I'll give you one common problem that I have also seen. I've seen that both men and women, I won't say only women, they have sometimes this problem of dependency. They need to grow dependent. It's not need, but they need someone or something. So they become vulnerable. You have to understand that you have actually become vulnerable by the very act. So whether the person is good or bad is a question of destiny. But most of the time you have become, even if the person is good, let's say in a marriage situation, if you are dependent on the husband, you have made yourself vulnerable. It's not a good thing. Whether man or a woman, beautiful, happy relation, but you have to be independent. That's the minimum for any human being. That is empowerment, to be strong. Otherwise you'll land up again and again because that vulnerability is not addressed. So you'll land up from one relationship to another, and there'll be a pattern. So one segment of my work is to help the youth align to careers from within. I found this calling very good. However, like you said, the noise of power and money, yes, so loud, it deafens any effort I make when and how to seek strength in any effort I make. When and how to seek strength and persevere. One thing very clearly, I'm seeing as a therapist myself, both doctor, psychiatrist, counselor. We are not God, let's be very clear. I'm now talking at a very practical level. Nobody has the onus of ensuring that everybody's problem is solved. You cannot do it. What we can do is do our best and then leave them to go through their own journey. Even divine does that. No, God is God. No, He can do everything, but He doesn't do that. He will help you, allow you a certain, but there is a relative freedom of choice in this world. That principle we should never forget. You may tell the most beautiful words, give the most beautiful advice, but ultimately it is the person who has to follow it. You may explain, look how ambition and running after money distorts your perception. It deviates us, completely deviates us from our calling. You can explain all this very logically.
Show him by examples in his own life how it has led him away from his own true calling. But at the end of the day, it is he has to choose. He wants to go back and continue pursuing the path of ambition and money. Let him understand what it means to pursue money. What happened to Midas? Ultimately, he touched his daughter and she turned into gold. I think people know this story. He got this boon, whatever I'll touch will turn into gold. Ended up touching his own daughter. She became like a gold object. But somebody whom he cannot connect with. She cannot speak to him and he cannot speak to her. So that's a sad thing. He thought, if I have a lot of wealth, I can look after my child and my family. Now it is absurd. You can explain that, well, a child does not need money. The child needs love. The child needs quality time. I have seen so many parents who keep saying, we are doing this for children. For God's sake, don't say this. You need some money for children. You don't need millions of rupees for a child. So, but in the bargain, they are satisfying their ambition by using this example that, no, we are doing it for your child. And if you are doing it for your child, having crores of rupees, you are actually going to spoil him. That's what Vijay Mallya did, Mallya's father. किंगफिशर, बचपन में 4 साल के बच्चे को खेल एयरलाइन लेके देना, ये कोई तरीका होता है? Money can buy so many things, but it cannot buy the most fundamental things of life. Love and care are indispensable. Giving time to your child is so important. Within the family, having a dinner together. But if you ask the parents, I have seen many parents, they'll say, हम अपने बच्चे के लिए तो कर रहे हैं. For God's sake, have you asked your child, what does the child want? Tell the child, I am earning crores of rupees for you, and see the response. And that's why he cannot have time with you. See what the child will say. Ask the child oneself, I am doing this. Ambition and money are the big spoil sport in our life. Biggest spoil sport. Everywhere. And it's a chakravyuh. People justify it. What else will we do? We have to do something. 100 reasons. But it's nothing but ambition, pure. And puncture that ambition sometimes. Ki, okay, supposing you became president of India, not of a company. So what? What happened to so many presidents who have come and gone? Do you even recognize them? They have come and gone. How long will that thing last? How helpless. Our previous president died, Pranab Mukherjee. I mean, you see him on ventilator, corona, and then he died. He's a good man. Okay, you become president. And who cares? Nobody loves you. They basically want to be in touch with you because of what you can give them. You surround yourself with flatterers. And you think that, oh, I am a very special man. No. The day your position is gone, you will be kicked. I am being very, very brutally honest because people who are caught in the web of ambition don't understand. I have seen one air marshal parking the car and suddenly, somebody told him, sir, yahan nahi, aise nahi hai. I am air marshal so and so. He said, sir, ye mera kaam hai, main kar raha hu. Khatam, chup ho gaya. What can you do? That's it. End of the story. Who cares? Who know? People don't even know you. You are living in a bubble. I am someone. Who cares? Frankly, you are walking on the road, even in a big car, who bothers? आपको लग रहा है कि मैं इतनी बढ़िया कार में घूम रहा हूं तो मैं कुछ खास हूं. कुछ भी नहीं हो. एक बीमारी आएगी आपको, उसको तो रेजिस्ट करना आता नहीं है. So, say with whatever way, ambition is one of the worst. Mother has used the word, it's the canker in the fruit. And people think they are someone, something, people will take a part from government, die the same way, go away. At the end you become a photograph. वो कौन सी थी, चेन्नई एक्सप्रेस, वो सारा वो दिखाता है वंश का फोटोग्राफ. ये मेरे दादाजी, नाना जी, वो शाहरुख खान है ना, सारा दिखाता है. ये सारी, ये सब हैं. तो अंत में वो क्या कहती है दीपिका, मतलब हीरोइन, ओ तुम लोग हलवाई हो. He was very offended क्योंकि वो बहुत रिच है, सुपर रिच फैमिली से. कहता अच्छा लेकिन हो तो हलवाई.
खत्म. ये नहीं कि हलवाई होने में कोई बुराई है, बट पॉइंट इज कि वी ट्राई टू इम्प्रेस पीपल विद व्हाट. और जो भी हमारे पास है भगवान का दिया हुआ है, उसमें इतना करने की क्या चीज है. आई एम सॉरी, आई गॉट ए लिटिल कैरिड अवे, बट यू कैनॉट. ये ग्रिप है, आप कितना भी समझा लो, बाद में वो व्यक्ति वहीं जाएगा. ये नशा है. एम्बिशन एंड मनी आर एक्चुअली एडिक्शंस. और जो उन्होंने कहा था ना रहीम जी ने, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए है व पाए बोराए. कनक इज गोल्ड एंड कनक इज ऑल्सो क्या आशीष वशीष कुछ बोलते हैं, दतुरा, सॉरी दतुरा. आई थिंक रहीम, बट आई मे बी रॉन्ग. हाँ, अच्छा, ओके, कोई थे. पर लुक एट दी वे ही हैज प्लेड विद वर्ड्स, कि दतूरे और सोना की तुलना कर रहे हैं कि दतूरे में सोने में दतूरे से कहीं अधिक मादकता है. आप कोई कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हो आप, सोना तो लिस्टेड नहीं है हमारी साइकेट्री की दवाई में, ड्रग्स ऑफ एब्यूज. तो कहते हैं नहीं, दतूरा खाने से नशा होता है, सोना पाने से ही नशा हो जाता है. इतना नशा होता है सोना पाने से कि सोना ही बंद हो जाता है. कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए है वह पाए बोराए. तो ambition and money are addictions. People I have seen who have plenty, but continue to work. They don't feel either satisfied or secure. Strange, because it's an addiction. उनको पैसा नहीं मिलेगा ना हाथ में, जैसे जुआ होता है ना एडिक्शन, ये एक एडिक्शन है. अब कोई बोलेगा कि भगवान की तरफ भी तो एडिक्शन है. ये श्री राम कृष्ण परमहंस को किसी ने बोल दिया था कि भाई ये भी तो पागलपन है. तो कहते हैं हाँ, एक कामनी कंचन के पीछे पागल है, एक धर्म पागल है. मैं धर्म पागल हूं, कम से कम मेरा कल्याण तो होने वाला है. तुम तो एबिस में जा रहे हो पागलपन में. इट इज ट्रू, इट्स ए सर्टेन इंटेंसिटी एंड मैडनेस एंड एडिक्शन, बट बीइंग मैड आफ्टर गॉड विल फ्री यू फ्रॉम योर इग्नोरेंस and eventually, give you that bliss which you are seeking outside, that peace, that knowledge. But this madness is going to destroy you, body and soul. But yes, nobody understands, I agree. That's why the world is what it is. Yes. What about some ambitions which are, for example, you want to be your best possible form, or you want... Yes. So that's not called ambition, that's called pursuit of perfection and excellence. That's called progress, which is beautiful. Ambition is always a relative thing. You are striving in comparison with somebody. The moment comparison comes, there is ambition. But pursuit of progress, this is what actually ambition should turn into. Mother has said, ambition should turn into pursuit of excellence, of perfection and arch for progress. There, nobody is in competition, you yourself, which is beautiful. So you are constantly doing it right up till old age. But ambition is, people don't admit, but it is always there in comparison with somebody. If you look sincerely, you will find. And then you will never be enough. I had a doctor friend, cardiologist, who would come and tell me, Doc, please help me, same college. So I said, kya ho gaya? He says, when I'm going in my car, I see a car in front and I want to overtake it. So I said, so what's the problem? So he said, नहीं, फिर वो उसको overtake करता हूँ तो दूसरी कार सामने दिखाई देती है. And I know actually a managing director of a big pharma company, ran back से, अब तो वो खत्म ही हो गई. तो वो बंदा डिप्रेशन में चला गया. तो he came to me and he said कि मैं जिससे मिला उसने मुझे एडवाइस दी कि जाके छुट्टी मना लो कुछ दिन, टेक चिल आउट इन सम प्लेस, हिल स्टेशन, आई फॉरगॉटन. तो वो चला गया. तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते और डिप्रेस्ड हो गया. तो मैंने पूछा क्यों? कहते चला गया, पहले 2 दिन मेरे अच्छे थे, तीसरे दिन टेनिस ग्राउंड था वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो टेनिस भी खेलता हूँ, बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड. ही लॉस्ट द गेम. अब छुट्टी मना रहे हो.
very random व्यक्ति and he lost the game. Now he started feeling I am no good. Whole thing came back. अब देखो आप, कोई लॉजिक है इसकी? So this is how unfortunately ambition works. It's a, mother has said it's a most dangerous thing. और spiritual life में तो don't enter if you have ambition. तो ये जो होता है ना, मुझे ये एक्सपीरियंस होगा, मैं कहाँ पहुँचूंगा, मुझे क्या मिलेगा, भैया खोने को तैयार हो तो जाओ, अब बोलो कितना खोना पड़ेगा, सब खोना पड़ेगा। रेडी? सर क्या बोल रहे हो? इतना क्या प्रेशियस है तुम्हारे पास जिसको खोने से डर रहे हो? ऑनेस्टली क्या है ऐसा जिसको तुमको लगता है कि खोना पड़ेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा? यू हैव टू लूज योर सेल्फ, एवरीथिंग। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ये पृथ्वी, ये विश्व ब्रह्मांड, ये सारा जगत ईश्वर का सृष्टि, सुप्रीम, हाँ, ये पृथ्वी मतलब ये अर्थ में, ये पृथ्वी में हम लोग भी उनका सृष्टि। तो अगर हम सारा जगत, सारा ये दूसरा पंचभूत हो गया, नहीं क्वेश्चन बता दीजिए क्योंकि सब लोग नहीं तो प्रतीक्षा करेंगे। क्वेश्चन बता दो। सृष्टि अगर हाँ, उनका ही है, हाँ, और जीवन भी उनका सृष्टि है, हाँ, शरीर भी उनका सृष्टि हाँ, है, कण कण में वो है, हाँ, जो ज्ञान दिया है वो उनका ही है। करेक्ट। तो रूपांतरण योग की जरूरत नहीं है। करते हैं, उनका ही हिसाब में करते हैं। तो हम क्यों इतना गौर करें वही। कि हम वो हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए? हाँ, अब मैं बताता हूँ। अच्छा, वो आप बोल रहे हैं एम्बिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ वो ठीक है, वो तो आप उसी बात को अपने अलग ढंग से बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि ये सब करने के बाद लोग इसको भी एक्सक्यूज के रूप में यूज करते हैं कि मुझे तो भगवान ने ही ये काम दिया है, भगवान का काम मैं कर रहा हूँ, खूब पैसा कमा रहा हूँ, ये सब उन्हीं का है। तो उसका डेंजर क्या होता है कि वो एक इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन के रूप में ठीक है। अब उसका एक्सट्रीम रिजल्ट देखिए, परिणाम देखिए। उसका एक्सट्रीम परिणाम ये है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मान लीजिए सभी उनका सृष्टि है, जीवन भी मेरा है, मेरा विचार भी उनका है, मैंने किसी को मार दिया तो मैं क्या करूं, ईश्वर ने करवाया, उसमें क्या बुराई है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इन जनरल। लॉजिकली अगर मैंने किसी को मार दिया, भगवान ने मुझे प्रेरणा दिया, मैंने मार दिया, मैं क्या करूं, उन्हीं की सृष्टि है, प्रेरणा दिया, हाथ में चाकू धर दिया और मैंने मार दिया। इज इट रॉन्ग और राइट? नहीं, क्यों नहीं मारेगा? मारे हैं, दुर्योधन ने मारे हैं, बहुत लोगों ने, रावण ने मारे हैं। लेकिन वो ईश्वर को समझा नहीं था। नहीं, वो तो फिर अब समझने का तो प्रयास करना पड़ेगा ना। ईश्वर को समझ लेगा कि नहीं, इतना देखिए इतना सरल नहीं है। यू आर ओवर सिंप्लीफाइंग समथिंग। समझना ईश्वर को अगर कोई कह रहा है तो बहुत बड़ी भ्रांति में है। ये ईश्वर को समझ लेना, ईश्वर ने तो अर्जुन को ये भी कहा, आपने कहा ना वो मार नहीं सकता, अर्जुन को तो ईश्वर ने धनुष उठा के अपने परिवार वालों को मरवा दिया। इट्स नॉट सो सिंपल। आप जो बता रहे हैं वो ठीक है एक सीमा के अंदर, ये वेदांत तो, ये तो फिर तो ऑनेस्टली अगर ये सत्य है तो रूपांतरण योग तो बेकार है। श्री अरविंदो माँ ने सब गलत कहा, क्योंकि फिर एफर्ट कुछ भी नहीं चाहिए। अगर सब ऑलरेडी ईश्वर है तो फिर क्यों हम किसी चीज के लिए एफर्ट करें? हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें, भगवान जैसे ले जाएगा। करेक्ट। तो फिर रूपांतरण योग की क्या जरूरत है? तो श्री अरविंद माँ गलत हैं, आपके अनुसार गलत हैं, बस तो फिर वहां पर रुक जाइए। या तो आप उनको समझने की चेष्टा कीजिए या कहिए कि मैं सही हूं। ये थॉट एक टिपिकल वेदांती का यही थॉट है, और इसको श्री अरविंद ने बहुत जगह चैलेंज किया है। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, ये रियल स्टोरी है। श्री रामकृष्ण परमहंस के एक गुरु थे, वेदांतिक गुरु थे। तो वो अपने साथ अपने बहुत सारे हैरम लेके चल रहे थे। हैरम समझिए ना। तो किसी ने उनसे कहा कि श्री रामकृष्ण को कहा कि लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्या है? बोले कि नहीं, सब कुछ भगवान है, और उस भगवान को मैंने ना केवल समझा है, पा लिया है। जब मैंने उस भगवान को पा लिया है तो मैं क्या करूं ना करूं, क्या फर्क पड़ता है? तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने क्या पता है कहा? ही सेड आई स्पिट ऑन हिज वेदांता। अभी श्री अरविंद का कमेंट, उस पर टिप्पणी बताता हूं। ही सेड आई स्पिट ऑन हिज वेदांता, और श्री रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, ओके, नॉट सम ऑर्डिनरी। तो श्री अरविंद कहते हैं व्हाट श्री रामकृष्ण परमहंस सेड इज राइट, बट इफ यू टेक द ट्रेडिशनल वेदांतिक व्यू, द गुरु हैज दैट मैन हैज ए पॉइंट। सब भगवान है,
भगवान की प्रेरणा से सब हो रहा है, समझने की तो बात ही नहीं आई इसमें। भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, मैंने जाके, कोई नहीं समझना चाहता है वो भी भगवान है। ये जो व्यू है, ये संसार को, भारतवर्ष को इसने बहुत विनाश की ओर ले गया है। क्योंकि इस व्यू ने ये स्वीकार कर लिया कि कहीं पर कुछ हो रहा है तो वो सब जो हुआ अच्छा हुआ, जो अच्छा हो रहा है। तो उस दृष्टि से अर्जुन को कुछ नहीं करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था भाई भगवान की मर्जी है कि दुर्योधन राजा बन गया, अब मैं क्यों करूं। यही तो चीज है जो श्री कृष्ण काउंटर करते हैं और श्री अरविंद काउंटर करते हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये एक व्यू पॉइंट हो सकता है लेकिन ये सत्य नहीं है, अल्टीमेट सत्य नहीं है। ये व्यू पॉइंट एक कंफर्ट जोन है जिसमें हम एफर्ट नहीं करें तो ये इजी है। इजी वे आउट क्या है? मदर इज डूइंग एवरीथिंग। ये श्री अरविंद योग में लोग इस तरह से, मदर इज डूइंग एवरीथिंग। ओके, तो फिर श्री अरविंद ने ये सब जो लिखा है तो वेस्ट किया है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि उन्होंने गलत लिखा है, और जो हमको एफर्ट की बात कही है, कैसा भी एफर्ट अंदर बाहर, तो मीनिंगलेस है। क्योंकि मनुष्य जैसा है वैसा है, सब भगवान करा रहे हैं, जैसे कर रहे हैं जैसे करेंगे। देयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये नहीं, वो इंडिविजुअल के लिए ये एटीट्यूड हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ईगो को जीतने के लिए, हाँ, ऐसा तो एम्बिशन कहाँ से आता है? मेरा ये है कि हम अगर यही सोच में चलेंगे तो हमारा जो ईगो है, ईगो कहीं पर ना कहीं ये थोड़ा क्या होगा ईगो को थोड़ा जीतने का रास्ता। क्यों करेंगे प्रयास? ईगो भी तो भगवान ने बनाई है, क्यों प्रयास करेंगे? डिजायर भी भगवान ने बनाए हैं। इसीलिए आपको मैं केवल एक सजेशन दे रहा हूं, गीता में डबल नेचर पढ़िए। आप पढ़िए, आपके मन में बहुत अच्छे विचार होंगे, लेकिन आप ये मत सोचिए कि एवरीथिंग इज नोन। आप यू रीड द डबल नेचर फ्रॉम द गीता एंड द डबल सोल ऑफ मैन फ्रॉम द लाइफ डिवाइन। यही तो प्रॉब्लम है कि सब भगवान है तो डिजायर भी भगवान है। मेरा डिजायर है मैं बहुत सारी चीजें खरीदूं, अपना घर बनाऊं, तो क्या बुराई है उसमें? कोई नहीं। भगवान ने मुझे सक्षमता दी है, इंटेलिजेंस दिया है, मैं ले रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, मैं कुछ थोड़ी कोई बुरा कर रहा हूं, डिजायर से उसकी पूर्ति कर रहा हूं। दैट्स व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड। वो आप जो कह रहे हैं वो एक ट्रेडिशनल वेदांतिक व्यू है, और वो बहुत डेंजरस है संसार के लिए। व्यक्ति को मोक्षवादी, वो हालांकि वहां पर भी श्री रामकृष्ण परमहंस यही बताते हैं, आई स्पिट ऑन योर वेदांता, दैट इज हिज वर्ड्स नॉट माइन, एंड ही इज राइट। क्योंकि फिर क्या फर्क पड़ता है? कोई एफर्ट का कोई मतलब नहीं है। क्यों ईगो को वो ट्रांसेंड करेगा? भगवान ने बनाया ईगो, चलने दो, मजा लेने दो। उस दिन जो हमने पढ़ा पोयम, ही सेड आई एम ईगोलेस फ्री, देन सोर बिकॉज हिज डिनर इज नॉट रेडी। हाँ, बोलो। So sometimes when I sit and think, okay, I'm doing this, I'm doing that, and whenever like I get upset on anything that's happening in my life, I go and think about it. That okay, why is this happening? What is happening? And then when I keep thinking about it and I keep thinking about it and I keep overthinking about it, at last I feel like, why am I doing all of this? Where is it leading me? And at one point I come that everything is the divine. At the end you have to reach the divine. But then how does everything connect, and you feel so lost and so meaningless? Yes. Next moment you feel a joy that the divine is there. So there are two different things. To try to understand is a very good thing, why I am doing. But the answer that comes ki it is God who is doing all this. So as I said, this is a kind of thought which comes. Now that, what does that thought do? At one level it gives us joy because I am not responsible for it and there is no need for any effort. That one must find out. I agree with you. But one must be, that is what is called sincerity. To detect what is wrong inside me, which may be fear. So one can't say divine has given me fear. So there is in man a double nature.
One is this lower nature, which is our present operating system. But there is a higher divine nature. The Gita talks about it and Sri Aurobindo. Nobody else talks about it openly. Shri Krishna speaks of his own Prakriti, Para Prakriti. And he talks of the lower Prakriti, Trigunatmak Maya. So, right now our operating system is Trigunatmak Prakriti. But we have to replace this operating system with a higher divine operating system so that there is no suffering and evil, which is a very good thing. So that's what it means. There are double nature. This nature is a nature of ignorance. तो इसको एक कहानी से बताया गया है. कहानी दिति और अदिति दोनों कश्यप ऋषि की वाइफ्स हैं. तो दिति के जो बच्चे हैं वो दैत्य हैं. Daitya are children of division. So they think only about themselves, me, myself. और अदिति की जो संतान है अदिति, दिति means same thing like द्वैत, दो, it means to divide. And Aditi is undivided. So first man is born like a Daitya as child of Diti. So he thinks only about himself. And next level is Aditi ki santan, Aditi the divine mother, which means now you are entering into a vaster consciousness where you are not just bothered about yourself but about the whole creation, about everything in creation. That means everything you are dealing with the same love and care to practically. So which is better? Which is better? Aditi. That's all that we need to remember, that there is a double nature. और जब तक हम उस हायर सुपर नेचर को नहीं एक्टिवेट अपने सिस्टम में करते हैं तब तक हमको कॉम्प्लेसेंट नहीं बैठना है. जितना भी कम है लेकिन वो हमारा पार्ट है, रोल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है. लेकिन अगर हम ये मान लेंगे जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, सब भगवान का हो रहा है, तो वो डेंजरस है. भगवान का वेल के थ्रू हो रहा है. ये डिफरेंस है विराट युद्ध में और महाभारत के युद्ध में. छोटा कहानी, उससे विल स्टॉप. वो ये वाला क्वेश्चन. तो विराट युद्ध होता है, तो विराट युद्ध में कौन तीर चला रहा है? उत्तर, प्रिंस उत्तर, और अर्जुन रथ हाँक रहे हैं. तो ये क्या है? वो बड़ा बन के गया. अर्जुन ने उसको बहुत चढ़ा दिया. चल चल चल, तुम यू आर ए प्रिंस. वो कहता है चोट उठ लगेगी. अरे क्या है, तू क्षत्रिय है, चल. वहां जब वो देखता है ना कर्ण, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, वो कहता है प्लीज पीछे ले चलो, रथ को वापस घुमा लो, प्लीज ले चलो. दिस कॉल्ड नेचर ऑफ इग्नोरेंस विच श्रिंक्स फ्रॉम द बैटल ऑफ लाइफ. तो फिर क्या होता है? चेंज ओवर होता है. तो अर्जुन सेज ओके नाउ यू ड्राइव द चैरियट, लेट मी फाइट. तो कहता है अरे तुम तो डांसर हो, ब्रयानल्ला बना हुआ है ना, तुम कैसे युद्ध लड़ोगे? कहते हैं कोई बात नहीं, पहले वो पेड़ पर ले चलो. वहाँ शमी वृक्ष से अपना धनुष बाण उठाता है, केश खोलता है. इट्स वेरी अमेजिंग इमेज ऑफ अर्जुन. साड़ी पहनी हुई है और केश खोलता है अर्जुन, और वो गांडी उठाता है. तो उसकी जैसी टंकार होती है ना, दे ऑल रियलाइज ओ माय गॉड. एंड देन वो तो सबको एक बाण मतलब मूर्छित कर देता है. तो दिस इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन द लोअर नेचर एंड द हायर नेचर. लोअर नेचर हमेशा चैलेंजेस से श्रिंक करता है, वो कंफर्ट जोन्स ढूंढता है, और कभी कभी वो स्पिरिचुअल टीचिंग को भी कंफर्ट जोन बना लेता है. कैसे? माँ सब कर रही हैं, माँ कर रही हैं, ये भी एक कंफर्ट जोन है. अर्जुन ये कह सकता था कृष्ण तुम तो हो, तुम ही करोगे सब, मैं बैठा रहूंगा. लेकिन कृष्ण ये नहीं कहते हैं. कहते हैं तीर तुझे, धनुष बाण तुझे उठाना है, तुझे ही चलाना है, मुझे स्मरण भी तुझे ही करना है, निष्काम कर्म भी तुझे ही करना है, समता का अभ्यास भी तुझे ही करना है, वैसे विजय मैं दिलाऊंगा. यत्र पार्थो धनुर्धरो यत्र श्री कृष्ण, वहां पर विजय आती है. सो दोनों पर्सनल एफर्ट इज इंपॉर्टेंट. अगर हम केवल ये सोचेंगे गॉड इज डूइंग एवरीथिंग, देन देर इज नो रियल स्कोप ऑफ पर्सनल एफर्ट. हाँ, नहीं, तो अर्जुन बैठ जाता. अब बोलिए आपका लॉजिक के अनुसार अर्जुन को कहना चाहिए था खत्म तो आपने सब कर दिया है. नहीं, पता चल गया था, ऐसा नहीं है. ये महाभारत को मिसकोट नहीं करिए. युद्ध लड़ने के पहले अर्जुन देख लिया था कि उन्होंने सब खत्म कर दिया है. तो फिर अर्जुन को क्या करना चाहिए था?
आप अपना बात में खुद ही उलझ गए। अर्जुन को बोलना चाहिए था, कर दिया, मैं चला, टाटा बाय बाय, यही करना चाहिए था। हाँ एग्जैक्टली, ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेशन का रोल है, नहीं तो योग नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। वो व्यक्ति बस ये विचार में उलझा हुआ किनारे रह जाएगा, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, इस थॉट से प्रगति नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं। वो किसी का अपना विचार है। अगर अर्जुन ऐसा सोचता कि भगवान ने सब कर दिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, तो अर्जुन तो इवोल्यूशन की धारा में किनारे चला जाता। ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट एंड द डिवाइन, यही तो इवोल्यूशन है, नहीं तो इवोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। फिर मिलियन ईयर्स के बाद सुपर माइंड भी आ जाएगा। यही वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके, एनफ ऑफ एम्बिशन। How to encourage a child to feel that truth does not emerge victorious in life based on their own bitter experience. Now, this is where the people have to understand what truth is. Truth is not a legal truth. कि भाई वो कोर्ट में तो हमने देखा था, हमारे पिताजी कहते वो हार गए, हमारी मम्मी ने तो गलत कुछ नहीं किया था, लेकिन वो पोजीशन तो किसी और को दे दी गई। ये तो सत्य का, ये तो झूठ की भूमि पर सत्य का खेल नहीं है। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं कि एक आनंदमयी मां के पास कोई व्यक्ति गया, तो उस अभी आई विल कम बैक टू दिस स्टोरी, बट कमिंग पहले, आनंदमयी मां के पास कोई व्यक्ति गया, उसने अपना कार्ड निकाल के, उसमें बहुत सारा डिग्री था, MBBS, MD, DM, DLit, PhD, सब कुछ। तो अब वो जो ले गया माँ के पास, अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या पढ़ूं बायोडेटा में, तो उसने शॉर्टकट में बताया, माँ कोई विद्वान आपसे मिलने आए हैं। तो आनंदमयी माँ का उत्तर था, अविद्या की नगरी में विद्वान कहाँ से आ गया। अब मैं इस कहानी को कंप्लीट करता हूं। एक पोस्ट था जिसके लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया, एक जो ईमानदार है, अच्छा है, जिसको लॉजिकली वो पोस्ट मिलना चाहिए था, और दूसरा जो डिजर्विंग नहीं है, लेकिन वो सिफारिश के कारण उसको वो पोस्ट मिल गई। तो क्या हुआ, ट्रुथ जीता, कहानी बाकी है। वो व्यक्ति जिसको पोस्ट मिल गई, वो बड़ा खुश हो गया, सुखी हो गया, बहुत गर्व में आ गया। जिसने उसको पोस्ट दिलवाई उसके बड़े नाम के गान करने लगा। वह जिसको पोस्ट नहीं मिली, उसको भगवान ने अपने लिए चुन लिया। अब बोलिए कौन सी डेस्टिनी बेटर है। तो सत्य की जो बात है ना, ट्रूथ विंस। इट इज व्हाट इज ट्रूथ, फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड। ट्रूथ इज नॉट दिस गिल्ली डंडा का खेल। ट्रूथ इज टू नो योर सेल्फ अबव ऑल, माई ट्रू सेल्फ, देन उस सेल्फ के थ्रू कार्य होना, दैट इज ट्रूथ। और वो जीतेगा ही जीतेगा। फर्क इतना है कि आप उसको आराम से जा सकते हो उस दिशा में, या ठुकाई करके जा सकते हो, यही अंतर है। तो ट्रूथ का मतलब यही है कि फाइनली ट्रूथ प्रिवेल्स मीन्स डिवाइन विल। इट्स ए डिसेंट वे ऑफ सेइंग। क्योंकि अगर आप ये ट्रूथ कॉन्कर्स कहाँ से आता है, ये श्वेताश्वतर में आता है ना, सत्यमेव जयते नानृतम। आगे क्या कहते हैं, सत्येन पंथा विततो देवयाना। अब हम कहते हैं ना कि कोर्ट केस में हम हार गए। अब देखिए इसमें एक मैं प्रैक्टिकल चीज की बात कर रहा हूं कि आप क्या सच से जी रहे थे, क्या आपने सदैव जीवन में सच बोला, जैसे आपने सोचा वैसा कृत्य किया। उसने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया। देयर वाज नो ट्रूथ इन दैट प्ले। इट इज ए प्ले ऑफ फॉल्सहुड, दोनों तरफ से। श्री अरविंद के केस में अब देखिए, व्हाई दिस एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट। जब श्री अरविंद खड़े हुए हैं, जेल के अंदर जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनको ये कहा जाता है कि चित्तरंजन दास आते हैं उनसे पूछने के लिए। पहले तो कोई और वकील था, देन फाइनली चित्तरंजन दास। तो श्री अरविंद बताते हैं कि पहले 2 दिन मैंने उसको कुछ कहा, बाद में आई लेफ्ट इट एंटायरली टू हिम। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का उनको दर्शन हो गया था। ही न्यू दैट द डिवाइन विल अकम्प्लिश इटसेल्फ। तो उन्होंने तब उसके बाद में, बिकॉज ही डिस्कवर्ड श्री कृष्णा, ही न्यू द डिवाइन विल इज एक्टिंग हियर एंड ही विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। तो वह जो है डिवाइन विल का एक्शन, वो ट्रुथ एक्शन है।
और वो एक्शन क्या था सोचिए, ना केवल श्री अरविंद जेल से निकलते हैं, वो परिवार को, परिवार मतलब वाइफ को, बाकी सबको छोड़ के वो डिवाइन विल उनको ले जाती है पौंडीचेरी के शोर पे, जहाँ उनको शाम को पैसा मिलेगा कि नहीं उसका भी डाउट है। तो वो डिवाइन विल के अधीन होना, उस समय अगर कोई देखता तो वो कहता देखो इनके साथ क्या हुआ, भगवान में विश्वास किया था, कृष्णा कृष्णा देखा, उनको तो सुना है पौंडीचेरी में जाके रेक्लूस का जीवन जी रहे हैं, उनको तो ठीक से शाम को खाना भी नहीं मिलता, यही बोला होता। लेकिन चित्तरंजन दास ने क्या देखा था, सच तो वही हुआ, द ट्रूथ विंस। तो ट्रूथ इज इन दिस सेंस, ट्रूथ इज जो डिवाइन विजन में चीजें देखी गई हैं वो जीतेगी, वही होगा। लेकिन द प्ले वी हैव टू मेक अवर ओन चॉइस, क्योंकि इस संसार में फॉल्सहुड कार्यरत है, मिक्सचर है, तो हमको तो अपना चॉइस करना पड़ेगा कि हम किस तरफ खड़े। अक्सर लोग बोलते हैं ना भगवान मेरे साथ हैं, श्री अरविंद ने इसको कहा भैया ये मत बोलो भगवान मेरे साथ हैं, ये बोलो कि मैं भगवान की तरफ हूं, भगवान मेरी तरफ है नहीं, मैं भगवान की तरफ हूं। तो देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। इस सेंस में ट्रूथ विंस, थ्रू स्टोरीज, थ्रू अंडरस्टैंडिंग वी कैन। Dear Alokda, you had said that prayer for divine help, for aspiration, for sincerity can be the way out of resistances and difficulties, but sometimes there is a resistance to pray too, or denial of existence of divine, or indifference to the mother, instead of devotion, even while at the samadhi. Yes, midst the perception of presence, it seems very evil, but it happens. And other times there is a prayer naturally. I also understand and have experienced that mother responds to sincere prayers. Yes, this fluctuation is there, क्योंकि हमारे अंदर दोनों बैठे हुए हैं ना। लेकिन नेचुरली जिसने भी क्वेश्चन लिखा है वो तो यहाँ पर है ना, इस ऑडियंस में मौजूद है। आपकी प्रेयर माँ ने सुनी कि नहीं सुनी, आपको किस भी थॉट आ रहे हैं, यहाँ तो पहुँच गए, माता जी के सामने बैठ के माँ के यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग को बाहर की पर्सनालिटी में बहुत कुछ होता है जो हम नहीं समझ पाते हैं, which we don't understand. It's taking place in a outer personality. There are people who feel, oh, I don't feel anything, I don't feel love for the mother. Don't worry. Mother loves you. Sri Aurobindo का एक वाक्य है, know that the mother loves you, base your life on this one single fact. I may not love the mother, but if she didn't, first of all, she loves everybody, carries in their own way. But if she didn't love, why is it that despite apparently not feeling anything, apparently not feeling love, कस्तूरी का मृग जो फिर फिर ढूंढे घास, why do we come? Something is attracted, no? There is a line in Savitri, some turn to her against their natures, divided between wonder and revolt. So, okay, divided between wonder and revolt. So always there are people in whom these things work. Doesn't matter. Keep increasing the little positive. Keep increasing that. It may be just one drop. बूंद बूंद से घट बढ़ता है. Keep on treasuring that drop. Keep on increasing that drop, and one day the whole thing will be full. So there are all kinds of things. So you see, so there are those for whom, so many types of people who turn towards her. There is no standard way. She held their hands, she chose for them their paths. They were moved by her towards great unknown things. Faith drew them, and the joy to feel themselves hers. They lived in her, they saw the world with her eyes. This is one type. But then there is another type. Some turned to her against their nature's bent. अरे समय आ गया, मोड़ दिया उन्होंने. Some turned to her against their nature's bent. Divided between wonder and revolt. Drawn by her charm and mastered by her will. Possessed by her striving to possess, impatient subjects
their tied, longing hearts, hugging the bonds close of which they most complained. मिलेंगे, आश्रम में ही मिलेंगे आपको बहुत लोग, अरे ये है, वो है, ये है, ऐसा है, क्रिटिसाइज करते करते। फिर आप उनको बोलो, भैया यहां रहे क्यों रहे हो, हैं ये क्या बात हुई? जीना वहां, मरना वहां, पर कंप्लेंट भी वहीं करना है। इट्स सो स्ट्रेंज, डिवाइडेड बिटवीन वंडर एंड रिवोल्ट। लेकिन माँ ने बुलाया तो है, ड्रॉ किया है किसी कारण से, वो जानती हैं। शी इज मच मोर, शी इज द ओमनिसिएंट, शी नोज एंड आई कैन टेल यू विद दैट काइंड ऑफ सर्टिट्यूड, आज अभी इस समय हम सब जो एक एक व्यक्ति यहां बैठा है, ये चांस नहीं है। और हर व्यक्ति जो श्री अरविंद आश्रम एक बार भी गया है, ये चांस नहीं है। हमको लगता है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम चले गए, पर कोई चीज है जो हमको खींच लेती है। सो डिवाइडेड बिटवीन वन, murmured at a yoke they would have wept to lose the splendid yoke of her beauty and her love. Others pursued her with life's blind desires, and claiming all of her as their lonely self, hastened to engross her sweetness meant for all. As earth claims light for its lone separate need, demanding her for their soul jealous clasp. They asked from her movements, bounded like their own, and to their smallness craved a like response. पात्र जैसा है उतना ही मिलता है। और they repined that she surpassed their grip. ये भी होता है, अरे श्री अरविंद माँ बहुत ऊपर की चीज है, पर जाएंगे वहीं, है ना, दैट शी इज सरपासिंग, बट स्टिल। तो ये देखिए, एंड होप टू बाइंड हर क्लोज विद लॉन्गिंग स्कॉर्ड्स, और फाइंडिंग हर टच डिजायर टू स्ट्रॉन्ग टू बेयर, दे ब्लेम्ड हर फॉर ए tyranny they loved, shrank into themselves as from too bright a sun. Yet hankered for the splendor they refused. Angrily enamored of her sweet passionate ray, the weakness of their earth could hardly bear. They longed but cried out at the touch desired, inapt to meet divinity so close. Intolerant of a force they could not house. They see, they are all different types. Up there is one more type. Some drawn unwillingly by her divine sway. मर्जी नहीं, मन नहीं है, पर भगवान की मर्जी है, क्यों खींच रहे हैं? Endured it like a sweet but alien spell. Unable to mount to levels too sublime, they yearn to draw her down to their own earth, or forced to center round her their passionate lives. They hope to bind to their hearts' human needs, her glory and grace that had enslaved their souls. This is how the divine acts. So yes, all kinds of things are there. There are some who are prepared. Basically, it's a question of journey through lives. Some are prepared and give themselves with complete faith. Some are not able to, some doubt, some try, etc., etc. Okay, this apparently the last. Patience, perseverance on one side, and need of extreme urgency, intensity of sadhana, realization on the other. Both here have stressed upon by the mother. How to reconcile the two? Yes, that's true. How to reconcile the two? We must aspire as if we want it now, but we must be patient that as if there is all eternity. Why? Because see, when vital aspires with impatience, it wants it अभी की नहीं मिला तो वो हतोत्साहित हो जाता है, it gets depressed. But when the psychic aspires with intensity, it can wait for eternity. And that is the difference between psychic love and vital love. The initial movement may look the same,
हम तुम्हें चाहेंगे ऐसे, क्या है वो, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। वह सुंदर है, हाँ? फिरोज खान, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। अच्छा, वो जब मैंने सीन देखा ना, मेरे मन में ये बात आई, थोड़ा मैच्योर हो गया तब तक। मैंने कहा ये सच में कह रहा है अभी अगर इसका क्योंकि वो नदी वदी के किनारे है सीन। मैंने कहा ये डूबने लगेगा तो ये खुद को बचाएगा या उसको बचाएगा। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो ऐसे। यस, दैट इज रियली ट्रू। लव इज लाइक दैट कि आई विल ड्राउन बट सेव यू। डिवाइन लव्स लाइक दैट। ह्यूमन मदर्स कैन कम क्लोज टू दैट। लेकिन वाइटल क्या करता है, गाना तो बड़ा अच्छा गा दिया, वो लड़की तो बहुत इंप्रेस हो गई, उफ यही है, हो गया, शादी हो गई। अब उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद भाई गलती की तुमको बचा के। वैसे वर्षा भी कहाँ चला जाता है? क्यों? यही डिफरेंस होता है वाइटल और वाइटल डिजायर और साइकिक में। साइकिक वेट करेगा, वैसा वाला वेट नहीं कि कयामत हो और हम तो आए, वो भी नहीं, मरने के बाद नहीं, वो वेट करेगा लाइफ आफ्टर लाइफ। बहुत कठिन है भगवान से ऐसे, लेकिन इंटेंसिटी वही है उसके अंदर। श्री अरविंद कहते हैं इट इज ए काम इंटेंसिटी। वो इंटेंसिटी उसको रेस्टलेस नहीं बनाती है, काम इंटेंसिटी है। That is beautiful, yes. If we think about that, then life would be very different. Just to think that she waits for us. So, psychic aspiration and vital desire, normally they get mixed. So, one has to remove the vital impatience, vital desire, and leave it in her hands. Aspire is our joy and privilege. To grant is her joy and greatness. That's how it should be. You see. Then why do you feel like a stifling within? Like you're still waiting in that cocoon to be a butterfly. Ah. It's like painful process. Yes, it is painful when the desired self gets joined into it. Then it becomes painful because you want it soon. So one has to understand that, well, it is in the master's hand whether to keep me a caterpillar or a butterfly. But I will aspire. I will seek to be his butterfly. That should be. वही है ना, वो वाइटल मिक्सचर होता है धीरे धीरे। नेवर जज अदर्स, डोंट ट्राई टू जज योर ओन प्रोग्रेस। हाउ टू डू इट इन सोशल मटेरियल फिजिकल वर्ल्ड। जज किसी को नहीं करना चाहिए तो प्लेन स्पीक है। क्यों? हमारे पास वो आंखें नहीं हैं। पहले तो ये मान के चलो, बाहर से देखना। मेरे साथ तो 2 बार ऐसे हो चुका है बहुत कंक्रीटली। एफएमसी में मेरा एक बहुत सबसे क्लोज फ्रेंड कहो या क्या कहो, उसको बहुत कुछ मेरे साथ फील होता था, तो मेरे साथ ही रूम शेयर करेगा सब कुछ। पर उसकी आदतें थी ऐसी, बहुत अच्छा पढ़ाई वढ़ाई में सब कुछ था, लेकिन ये वो होती है लोगों को, वो क्या बोलते हैं, हशीश पीना, ये पीना। पर दिल का बहुत अच्छा था। तो ये शुरू में क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अलग था, मुझे लगा ये क्या है, तो उसने एक दिन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। आई बिलीव वन शुड बी ऑनेस्ट टू वन सेल्फ। मैंने कहा ये बात तो बड़ी जबरदस्त बोली है इसने। ही रिमेन्ड एथीस्ट ऑल हिज लाइफ, बट आई मीन एज फार एज आई नो, बट वी वर वेरी क्लोज। वो इट नेवर केम, हिज हैबिट्स वर वेरी डिफरेंट इन दिस सेंस। बट ये बात मुझे स्ट्राइक करी कि yes, one should be honest with oneself. One should not lie. It is a very beautiful thing, to say. दूसरा तो एक पूरा ही शराबी, गालियां भी देना। एक दिन उसको मैंने उसको बहुत जोर से डांट दिया, गेट आउट बोल दिया, यू विल नॉट सिट इन द डिस्पेंसरी। वो आया था कुछ दूसरे कारण से, खैर वो चला गया। उसके बाद उसने वो कहते ना खार खा ली। जाट भाई था, पड़ गया मेरे पीछे, लंबा चौड़ा आदमी, हर बार मुझे थ्रेटन करे, मैं देख लूँगा। मैंने कहा मैं भी देख लूँगा। तो बोला आप जानते नहीं हो मैं हरियाणा का हूँ, कहाँ फेंक दूंगा पता नहीं चलेगा। मैंने कहा मैं भी फौजी हूँ, मेरी भी एक बात पे 100 लोग खड़े हो जाएंगे। वो सब ईगो का टाइम होता है ना बड़ा। फिर उसके बाद वो होते ना, जब बार बार आप सांप को देखते हो तो आपका
इट बिकम्स योर पार्ट ऑफ योर, कोने में चला जाता है. बट ही वुड ट्राई टू पिंस एंड नीडल्स. फिर एक दिन मैं आश्रम में बैठा था, तो वो दुत रहता था नशे में हमेशा, और भी क्या क्या करता. मैंने देखा ये आया और समाधि के पास खड़ा रहा, देखता रहा, फिर इसने प्रणाम किया, चला गया. अब मेरा पूरा मन कहते हैं ना, हृदय अंतरण हो गया. अरे माँ को प्यार करता है, क्या फर्क पड़ता है. और माँ की लीला है कि नेक्स्ट डे वो आया मेरे पास. तो जब मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा, अजय बताऊं सच में कि मेरा दिल बदल गया है तेरे प्रति, अब मेरे अंदर कोई वो नहीं है. तो बोला मेरा भी बदल गया. इट वॉज सो स्ट्रेंज. पहले तो उसने एक बार चैलेंज किया था, मेरे वहां आ जाओ तो मैं देखूंगा. तो मैंने कहा बोलो कहाँ है, आऊँगा. वो थोड़ा ज़्यादा जोश वाली जिंदगी ना, कहाँ है तेरा घर बता. तो बोला बदल गया, बदल गया. तो मैंने कहा वैसे मैं बताऊं मेरा दिल क्यों बदला. वो इंटरेस्टेड नहीं था, बट ही वॉज वेरी फ्रेंडली एंड यू नो शेक हैंड. तो मैंने कहा आई रियलाइज दैट यू हैव लव फॉर द मदर, what else matters? So you know what he replied? He said, who else is there to love? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए. मैंने कहा इस आदमी को मैंने व्यर्थ का, वो एक लेसन था मेरे लिए. तो हम जज किस चीज से करते हैं? बाहर से देख के. कौन जाने अंदर क्या चल रहा है. हाँ, अब डोंट जज अदर्स का एक दूसरा साइड है जो मॉडर्न जनरेशन में का है कि हम किसी के साथ भी मिलेंगे बैठेंगे. नहीं, आपको ये देखना है कि कौन से इन्फ्लुएंस आपके लिए अच्छे हैं नहीं है, ये आपको देखना है. दो डिसर्नमेंट और जजमेंट में अंतर है. जजमेंट उस व्यक्ति को कंडेम कर देता है फॉर एवर. डिसर्नमेंट इज दिस कंपनी इज गुड फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस कंपनी इज नॉट गुड. उसके बाद ये नहीं कि मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली, उसके जुआ के अड्डे पे चला गया. नहीं, दैट इज द डिफरेंस. सो डिसर्नमेंट एंड जजमेंट, ये आप देखो संसार में जाते हो तो आपकी क्या स्टेज है क्या नहीं है, उसके अनुसार किसके साथ आपका उठना बैठना खाना पीना. दिस मच डिसर्नमेंट वन हैज टू हैव. बट डोंट जज मीन्स कंडेम और जज वन सेल्फ भी सेम थिंग अप्लाइज. कि और माँ की तरफ जब मुड़े तो जज वन सेल्फ इज नो मीनिंग. अब देखो माँ की तरफ कैसे मुड़े. माँ ने ही पहले चूज किया. जिसको जगत जननी माँ ने पिकअप कर लिया, कुछ तो देखा ही होगा. क्या देखा होगा हम नहीं जानते. अच्छा है नहीं जानते. विनम्रता रहेगी. कुछ लोगों में ये भी आ जाता है, यू नो आई एम लिविंग इन द श्री अरबिंदो आश्रम. ठीक है भाई, व्हाट डिफरेंस डज इट मैटर. तो ये ईगो भी आ जाती, प्राइड आ जाता. तो अब माँ ने पिकअप किया है, क्यों किया है उन्होंने, शी नोस. तो दैट्स एनफ. इफ द डिवाइन हैज पिक्ड. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है श्री अरबिंदो की 2 लाइन की, वो एक बार दर्शन मैसेज में भी दिया गया था. द एवरेज मैन जजेस द मास्टर बाय द डिसाइपल्स, बट द नोअर या ज्ञानी, उसका वर्ड मैं भूल रहा हूं, judges the disciples by the master. Judges the master by the disciples. अरे ये इनके डिसाइपल हैं तो वो क्या होंगे, ऐसे ही होंगे. और दूसरा है ये इनके मास्टर हैं, कुछ तो होगा इस बंदे में, पता नहीं क्या है, कुछ तो होगा. दैट इज द डिफरेंस. ओके, सो डोंट जज प्लीज, because we don't have the eyes to judge. So develop the eyes to discern and know. I have a fear of animals since childhood. I admire them from a distance, but don't like when they come near. How can I work towards transforming this? Yes, by awakening more and more love. But that doesn't mean, you see, you have to know. Doesn't mean that you'll start loving every animal. Love from a distance is safe. Nobody is saying you have to do cuddly to a tiger and or put a snake inside the house. That measure is fine, nothing. But yes, love is fine. If you love from a distance, I think that is fine. You don't have to take a pet and keep it right inside the house. That's not needed. But you should not, from a distance is fine. That's good enough. We don't have to worry. Rest will develop.
what should be ideal way of doing a relationship of life partners in today's world, and how it will be the true relationship in the coming new world. First of all, in any relationship, किसी भी मानवीय संबंध में, वो चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, पार्टनर फ्रेंड, एक चीज तो मान के चलना है कि कोई रेडीमेड लंच नहीं है. समस्या तो वही होती है, हमको बना बनाया खाना चाहिए, नहीं है. दूसरा, त्याग और तपस्या जो हम भूल गए हैं. दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. आपको कोई संबंध अगर सुदृढ़ करना है तो दोनों को त्याग और तपस्या करनी है. वो आंख मूंदने वाली नहीं. कई चीजें होंगी जो आपका मन नहीं है या आप किसी उसमें हैं, और आपके पार्टनर की अगर कोई नीड है या कुछ करना चाह रहे हैं, वो आपका साथ, तो आपको साथ देना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते हो मेरा नहीं है. प्रेम तो यही होता है ना कि हम एक दूसरे के लिए परस्पर त्याग भी करते हैं. त्याग और तपस्या खत्म हो गई है. तो ये कारण क्या है? सर्च फॉर इंडिविजुअल हैप्पीनेस. तो रिलेशनशिप में भी यही होता है. अरे आप वही थोड़ी होती. कई बार आप दूसरे की बात को भी समझते हो, कुछ चीजें ऐसी करते हो जो आपका मन नहीं कर रहा है, पर आप करते हो क्योंकि वो प्रेम का एक हिस्सा है. तो वो त्याग और तपस्या, केयर, सिंपैथी, ये साइकिक क्वालिटीज हैं. ये हमारे चैत्य को पोषित करती हैं. किसी भी रूप में जब हम करते हैं, नहीं मन है लेकिन हम करते हैं, तो ये पार्ट बहुत जरूरी है इवन नॉर्मल रिलेशनशिप में. और जहां पर, और आजकल ये समाउ इज मिसिंग, क्योंकि वो पहले तो एक रेडीमेड शादी हो गई है, बस मेरे कल्पना की परी, कल्पना का चित्र सीधा हो गया. नहीं, बहुत एक दूसरे प्रॉब्लम होती है. जहाँ एक ही व्यक्ति करता जा रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो समस्या होती है. दैट आई अंडरस्टैंड. पर अगर दोनों, हाँ बोलिए मदन कुमार. बाउंड टू, हाँ, अच्छा, आई विल हैव टू सर्च. बाउंड, हाँ, मुझे नहीं, फेट, ये सेंटेंस नहीं आ रहा है. जस्ट सर्च इफ इट इज देयर ऑन द, हाँ, बट आई डोंट रिमेंबर दिस सेंटेंस. और अगर वो सेंटेंस है तो वो उसमें कुछ, क्योंकि फिर तो वो माँ श्योरबिंदु पर ही नहीं अप्लाई करेगा. हाँ, दैट इज डिफरेंट. वो जो मदन गोपाल जी कह रहे हैं वो अलग है. देयर इज ए थर्स्ट और नीड फॉर ह्यूमन लव दैट नो ह्यूमन रिलेशन कैन क्वेंच. एंड शी डिड नॉट से कि एक संबंध एक बार जुड़ गया तो पूरे जीवन. बट फेट की जो बात आ जाएगी, तो फिर तो फेट को दो तरह से हम समझ सकते हैं. फेथ, हाँ वो ठीक है. फेथ, यस, हाँ, आई हर्ड फेट. हाँ, फेथ बिल्कुल. ट्रस्ट अगर रिलेशनशिप के आधार है, हाँ, बाउंड टू फेल, दैट इज इवन ग्रेटर ट्रूथ. क्यों? वो तो कल बात हुई ना, वही, क्योंकि ईगो डिजायर के कारण. हाँ, दैट इज क्लियर. क्योंकि वो तो नहीं होगा, क्योंकि हम सोच क्या रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि वो किराने की दुकान पर हीरा मिलेगा. नहीं मिलेगा. हीरे की दुकान पर भी नहीं मिलेगा. पैसा, मोटी रकम मांगी जाएगी तो नहीं मिलता है. ये सच बात है कि ऑल ह्यूमन रिलेशंस आर बाउंड टू फेल. फिर भी ह्यूमन रिलेशन को टिकाया जा सकता, माने वन कैन वॉक टुगेदर, उसकी बात हो रही है. जहां क्या करा जा सकता है? सेंटर अराउंड समथिंग हायर. तो कम से कम आप चलोगे, हाथ पकड़ के, बीच बीच में झटका लगेगा, लेकिन कम से कम आप चलोगे. अगर हायर आइडियल है तो, नहीं तो पार्टिंग हो जाएगी बेस की, आप नहीं कर सकते हो. एक टाइम आएगा जब आपका रास्ता अलग होगा. एक टाइम तक आप खींचातानी करोगे, फिर यू विल टेक द रोड जो आपकी डेस्टिनी में है, और अगला बंदा उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो अब साथ रहना तो एक अलग बात है. सो यस, ऑल ह्यूमन रिलेशंस आर बाउंड टू फेल. एब्सोल्युटली ट्रू. क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स परफेक्ट लव करने के लिए भी तैयार नहीं है. और कभी कभी होता है परफेक्ट लव, एक तरफा होता है, तो उसको आइडियल रिलेशन नहीं कह सकते हैं.
श्री अरविंद का एक वो है, ओके दैट वी कैन सर्च, वी हैव, हाँ, जब ह्यूमन लव फील होगा, that will open the door towards divine love, no? maybe towards another human love, maybe towards third human love, maybe towards maybe toward disappointment and dejection, maybe shut the doors to the divine, because देखो ये भगवान ने क्या दिया मेरे जिंदगी में, क्यों लिखा था ऐसा व्यक्ति, मे बी इज वेरी गुड. Give me keyword, sir, I need to search. नहीं, लीव इट. पर ह्यूमन लव का आइडियल हमेशा रहना चाहिए, उसको कभी धूमिल नहीं होने देना चाहिए. बट ये सच है कि नहीं होता, सिनिक कभी नहीं बनना चाहिए कि नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है. जो आज नहीं हुआ, आज की मनुष्यता में नहीं हुआ, चूंकि मेरे अंदर ये आइडियल है, कभी ना कभी होगा. ये हमारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आज नहीं हुआ फिर भी हमारे अंदर ये आइडियल है, तो आज नहीं तो कल होगा. मुझे मालूम नहीं है इसकी प्रोसेस, ये हम कह सकते हैं. परहैप्स आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली टू लव और हाउ टू, बट वन डे इट विल रियलाइज इटसेल्फ. सो ये होना चाहिए, तो वन डे इट विल. और अब हम एंटर कर रहे हैं, जितना हम ईगो से बाहर निकलेंगे, डिजायर्ड सेल्फ से बाहर निकलेंगे, उतना ही हम प्यार कर पाएंगे. सच बात तो ये है, क्योंकि ईगो तो अपने लिए प्यार करती है. वो जो कल हमने पढ़ा था परसों ट्रिपल सोल फोर्सेज में, आई हैव लव्ड बट लव्ड फॉर माई ओन सेक एंड नॉट फॉर द बिलवड सेक. अधिकांश लव यही होता है, जब तक वो एक दूसरे से म्यूचुअल चलता है. ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स दे पेल, वो एक है उसके नीचे. अब लोग बाहर से नहीं, बाहर से तो हाथ पकड़ के, आजकल तो फैशन भी हो गया, कम डार्लिंग, लेकिन वो कमरे में पहुंचने दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है. So it's true that yes. No, but it can. Its power is very limited. The point is, वो एक पार्ट है, but it's about assigning the true value of money. Money is meant for outer things. Very simple. That's its value. Outer things, your physical body has to come here, you need to take a flight. But you may be coming here. There are people who live here, by the way, but who are not open. Money can't do that. There are people who will be, in Pondicherry में बता रहा हूँ आपको, इसका किसी ने ये बात मुझसे पूछी भी थी, तो कि भाई बिना पैसे के तो हम पौंडीचेरी भी नहीं आ सकते. हाँ, पौंडीचेरी में एक से एक लोग हैं जो करोड़पति भी हैं और सब कुछ हैं, लेकिन वो माँ की तरफ नहीं टर्न्ड है. वो जो पार्ट है, मनी कैन डू आउटर थिंग्स, दैट आई एग्री, बट दैट्स वेयर इट्स यूटिलिटी एंड्स. पर जब हम मनी को उसके आगे वैल्यू देते हैं, लाइक मनी कैन बाय यू मेडिसिन, इट कांट बाय यू हेल्थ. Money can buy you a person who will be with you thinking, all the time, but it cannot buy love. मदर पुस्तक में जो Money, हाँ. मदर पुस्तक में कि अर्थ शक्ति जो है असुर का कवल में है, हाँ, छीन के लाना है, बिल्कुल. उसको उद्धार करने हाँ, दिव्य का कर्म में लगा. हाँ, वो किस कंडीशन इसी कंडीशन में. लेकिन कई लोग मैं जानता हूं जो इस चक्कर में असुर शक्ति से लाना है, खूब पैसा कमाते हैं, पर जो दूसरा पार्ट है कि दिव्य के काम में लाना है, वो नहीं करते हैं. वो सिंसेरिटी चाहिए, आई एग्री. अच्छा, उसका भी माँ ने कहा है कि ये कुछ लोग इसके लिए बने हैं. अब मान लीजिए मेरा जो काम है वो ज्ञान का वो है, अगर मैं बोलूँ अरे वो तो ये लिखा है दिव्य शक्ति मुझे लाना है उसको, मनी को, और मैं बिजनेस करने लग जाऊँ. आपको दो कहानी सुनाता हूँ, आश्रमाइट की कहानी सुनाता हूँ. हाँ, मैं बताता हूँ कि कैसे होती है ये सिंसेरिटी इनसिंसेरिटी की चीज़. लाइन बड़ी थिन होती है, क्योंकि माँ श्री अरविंद के वर्ड्स को जस्टिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. आपको मैं एक रियल और बड़ी अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक स्टोरी है, एक सेमी ट्रेजिक है. एक व्यक्ति ने शेयर में पैसा लगाया, करते करते उसका सारा डूब गया. वो रियलाइज़ किया, उनकी तो छोड़ो, वो तो, लेकिन माँ के नाम पर लगाया था. पर एक दूसरे व्यक्ति को बता रहा हूँ मैं आपको कि उसने पैसा लगाया कि उसको शेयर से पैसा बढ़ेगा तो मैं उसको माँ को ऑफर कर दूंगा. ओके, ही स्टार्टेड विद सम, जो भी पैसा था 1,000 5,000 में भूल गया, 10,000 के नीचे था, तो 1 लाख बना धीरे धीरे करके. तो बोला अब मैं ऑफर कर देता हूँ. फिर कहा 1 लाख फिर क्यों करूँ,
क्यों ना मैं 4 लाख बढ़ा के करूँ, 2 लाख। तो 2 लाख बना कुछ समय के बाद। फिर उसके दिमाग में आया जब 2 लाख करना है तो मैं 10 लाख क्यों ना ऑफर करूँ। तो उसने 10 लाख बनाया। ये रियल बता रहे हैं फिगर्स में। करते करते एक दिन वो पागल हो गया। पागल हो गया, वो एडमिट था, तो मैं पर्सनली जानता हूँ उस व्यक्ति को। पूरे जिंदगी वो सन्यासी की तरह जिया चैन कि पैसा बनाऊंगा माँ को दूंगा। जब पागल हो गया तो वहाँ पर आश्रम में, नर्सिंग होम में इडली दी जा रही है, तो वो कहता है मैं तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इसका कितना दाम है, मतलब हिज माइंड इज नॉट वर्किंग, इसका कितना दाम है, क्योंकि मेरे पास तो 10 रुपया है, 10 रुपया से ज़्यादा है तो मैं नहीं खा सकूँगा। तो हमने कहा नहीं ये आश्रम का, तो यहाँ पैसा नहीं लेते हैं। ही वॉज सो मनी एट पजेस्ड हिज कॉन्शियसनेस, पजेस्ड हिम कंप्लीटली। और जब वो उसका डेथ हुआ तब लोगों ने, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो अपना माइंड लूज कर गया ना, विल भी नहीं बना सकता है कि आई वॉन्ट दिस मनी टू गो टू द मदर। हालांकि वी ट्राइड, आई ट्राइड, क्योंकि पता ही है तो कुछ तो कि ओके आई विल से, बिकॉज होल लाइफ ही हैज लिव्ड इन द आश्रम, आश्रमाइट। And do you know how much money he had in his account? 1.5 crores nearly. And none of it went to the mother. गवर्नमेंट कहाँ चला गया? आपने अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, आपने अगर उसको विल नहीं बनाया, कागज पत्री नहीं किया, तो आपके पास थोड़ी आएगा। अकाउंट में था लेकिन विल नहीं है ना, सीज हो गया ना, वो पैसा चला गया जहां भी, मतलब वो तो पैसा वैसे भी कोई बैंक के अंदर रखा नहीं होता है। अब बैंक के अंदर जो लायबिलिटी था आपको देने का वो खत्म हो गया, तो बैंक का ट्रेजरी में, मतलब गवर्नमेंट का ट्रेजरी में है। और एक टॉक में आप बोले थे कि आश्रम में एक सेल्टेक्स, मतलब इनकम टैक्स सेल्टेक्स का इकोनॉमिस्ट कोई आए थे माँ का सेवा करने के लिए, उधर सेवा करने के लिए, फिर उनको बोला गया कि डाइनिंग पे नहीं। हाँ वो अलग कहानी है, आई विल टेल द, हाँ वो पूरा कहानी है आपको। वो आर के तलवार थे, गवर्नर ऑफ आरबीआई, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। और वो थे जिन्होंने इंदिरा गांधी, उस समय संजय गांधी ने उनको कुछ ऐसा कुछ करने को कहा जो उचित नहीं था, तो अंडर, मतलब संजय गांधी तो कभी प्राइम मिनिस्टर बना नहीं, इंदिरा गांधी के बिहाफ पर ही कॉल्ड, ही सेड आई विल नॉट डू इट। सो उसने कहा इन दैट केस यू हैव टू रिजाइन, तो ही रिजाइन, सेड फाइन। तो लोगों ने उन्होंने कहा कि अरे आपके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। बोला नहीं, बहुत अच्छा हुआ, मेरे मन में एक समय से था कि मैं जाके माँ की सेवा करूं, यहाँ भी मैं माँ की सेवा कर रहा था, अब मैं डायरेक्टली जाके करूँगा। वहाँ जाके उन्होंने डाइनिंग रूम का काम नहीं किया, उन्होंने कंसल्टेंसी खोली, बिकॉज ही वॉज ए आरबीआई गवर्नर, ही न्यू अबाउट फाइनेंसेस। और आपको रियल बताता हूँ कि जितना पैसा उनका आता था, उस ये डिकेड्स पहले की बात है, इंसिडेंटली with the money that he would get out of consultancy was running in lakhs. Every penny he offered to the ashram, every penny. और वो केवल अपने जो उनको पेंशन मिलता था वो भी बहुत थी, पर उससे वो जीव, तो वो, लेकिन वन शुड नो, अधिकांश लोग क्या करते हैं कि माँ के लिए हमको पैसा करना है, और वो हर कोई उसके लिए बना भी नहीं। ये भी माँ ने कहा है कि एवरीबडी इज नॉट मेंट टू डू दैट। माँ ने तो बहुत कुछ कहा है, खाली इसको थोड़ी कहा है। तो मनी हैज इट्स प्लेस, बट वी शुड नो। जो भी आप बोलिए, माँ जिसका हाथ पकड़े हैं तो कभी उस तरफ नहीं जाएगा, इस तरफ भी आएगा। इतना आसान है तो फिर ये तो हाँ, ये अल्टीमेटली ट्रू है। चलिए आपसे मैं, अल्टीमेट ट्रूथ है कि माँ ने अगर हाथ पकड़ा है तो वो कितना भी इधर उधर जाए, मैं उसको मॉडिफाई कर देता हूँ, वो गड्ढे में भी गिर जाएगा तो माँ उसको निकाल लेंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन नहीं, अभी मैं उसको कंप्लीट कर दूं, वो गड्ढे में भी गिर जाए तो माँ उसको निकाल लेती। लेकिन कितना अच्छा होता ना कि वो बिना गड्ढे में गिरे, माँ को इतना कष्ट दिए, खुशी खुशी चलता जाता। इन दोनों में अंतर है बस। हाँ, यही बात है। वो सच है कि वो गड्ढे में भी गिरेगा तो माँ निकाल लेंगे, लेकिन कितना अच्छा है ना, वो जॉयसली, एक माँ है उसको कितना उनका जॉय भी सोचना चाहिए ना, मेरा नहीं कि मैं तो गड्ढे में गिरूंगा निकाल लेंगे। सोचना हमको ये चाहिए कि माँ को किस में आनंद होगा, टू सी द चाइल्ड फॉल इन द डिच एवरी टाइम, और टू सी द चाइल्ड हैप्पीली फॉलोइंग द सनलिट पाथ। यही अंतर है। ओके, विल फिनिश इट, जस्ट 1 or 2 questions more.
तो रिलेशनशिप की बात हो गई, इतना बहुत हो गया भाई, खुशी खुशी रहो। पर अगर सोच रहे हो कि ये जन्म जन्म का फेरा है, वो गाने में बहुत अच्छा है, 7 जन्मों का फेरा। लेकिन ये है कि आइडियल लव होता है, पर उसके लिए वो रेडीमेड नहीं है। उसके लिए जो त्याग और तपस्या है, उसके लिए एक साधारण मनुष्य तैयार नहीं है। अगर कर सकते हो तो करो, बिकॉज इट्स वर्थ इट। अगर आपके अंदर कोई आइडियल है कि आइडियल ह्यूमन लव होना चाहिए, माँ का एक प्ले है असेंट टू द ट्रूथ, उसमें एक साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, एसेटिक, इनके ऊपर तक एक 2 लवर्स जाते हैं। यू रीड दैट, एक्चुअली हाथ पकड़े हुए, दे क्लाइम टू दैट हाइट। उसके बाद भी आगे जब जाते हैं साधक्स, मतलब साधक साधिका, दे आर ऑल गोइंग फर्दर। तो ये सच है कि जो भी आइडियल मनुष्य कंसीव करता है वो संभव है, लेकिन जितना बड़ा आइडियल उतनी बड़े त्याग और तपस्या। तो ये व्यक्ति को समझना चाहिए। अगर आदर्श प्रेम आइडियल है तो सावित्री जैसी तपस्या करनी चाहिए, रुरु जैसा त्याग करना पड़ेगा, आधा जीवन त्याग कर दिया। और यदि भगवान आइडियल है तो उस सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा, सारा जीवन तपस्या हो जाएगा। और बाकी अगर बस थोड़ा खेल कूद, मौज मस्ती, पैसा कौड़ी, एक दूसरे में लिप्त होना, वो एक अलग बात, वो अवेलेबल है बाजार में। सो दैट इज द सम एंड सब्सटेंस। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट इट रिक्वायर्स, जितना बड़ा आइडियल उतना बड़ा। वो रेडीमेड नहीं है, और रेडीमेड नहीं है क्योंकि इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल अर्थ पे ऑपरेट करता है। स्वर्ग में शायद होता है रेडीमेड, आप गए आपको मिल जाता है अपना चेता पार्टनर, बट अर्थ पे इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल अप्लाइज। ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ, तो यस, हुज कॉल प्रोबेबली, बट यहां पर है वर्ल्ड्स, सृष्टि की पुकार। जो हम पुराणों में सुनते हैं ना कि पृथ्वी माँ जाती हैं विष्णु भगवान के पास, कितने लोगों की पीड़ा। माता सीता के बारे में ये कहानी आती है ना कि वो कुंभ जो था, जो राजा जनक डिस्कवर करते हैं, वो उन ऋषियों की जो रक्त था जिनको रावण ने मारा था, और मार करके वो रक्त भर करके अपने घर ले आया था एज ए ट्रॉफी। और उसकी माँ ने बताया ये मतला तू, इसमें उनकी आह भरी है, और तेरे को जहां ये जाएगा कुंभक वहां विनाश होगा। तो इसने क्या किया, वो कुंभक ले जाके राजा जनक से इसको थोड़ी खार खाई हुई थी वहां जाके डाल दिया। भगवान की लीला है, लेकिन लाया तो अपने पास था। अंत में उस कुंभक के अंदर से माता सीता निकलती हैं और वो फिर वापस वहां ले आता है, विनाश होता है। सो ये कितनी पीड़ा। और कई बार मैं अभी जैसे बाबरी मस्जिद लोग बात करते हैं तो अरे ठीक है हो गया। मैंने कहा तुम जरा 500 साल पीछे अपने आप को ले जाओ, और तुम एक हिंदू हो। तुलसीदास ने लिखा भी है इस पीड़ा के बारे में। जब राम मंदिर डिस्ट्रॉय, तुम्हारे सामने तुम्हारे अल्टीमेट जो तुम्हारे आदर्श हैं, प्रिय हैं, उनका स्थान नष्ट किया जा रहा है, तुम्हारी कितनी पीड़ा उठी होगी। उस समय तुम कुछ नहीं कर पाए होगे। तो पीड़ा तो है ना अर्थ के अंदर कहीं, तो शनि देव तो करेंगे ना उसका फैसला। तो सूर्य के पहले कौन आता है? शनि आते हैं। ट्रूथ के रेन के पहले रेन ऑफ जस्टिस आती है। ये हम अभी देख रहे हैं। तो सावित्री का आवाहन कितनों ने किया होगा, पर यह जरूर है कि उस कैंटो में, 3rd कैंटो 3 बुक 1 में ये भी बताते हैं कि उस सारी ही एंग्विश को संसार की किसने अपने अंदर धारण किया था। वन इन द फ्रंट ऑफ द इमेमोरियल क्वेस्ट, तो वो अशुपति है। तो कोई धारण करता है। हम लोगों के केस में वी कैन से कि श्री अरविंद है, जिन्होंने सृष्टि की असदोमा सदगम, या ये सब जो, ये थोड़ी कोई ऐसे निकल। हम लोग इस पर आजकल गाना गाते हैं असदोमा सदगम, या वो ऋषि के अंदर क्या भाव आया होगा कि यह अंधकार के जगत में हे प्रभु तेरा प्रकाश आए। ही मस्ट हैव फेल्ट द एंग्विश। मृत्यु की जगत में अमृतत्व, ऐसे नहीं उसने गाया होगा असदोमा सदगम, या
वो तो हृदय के अंदर से, सोल के अंदर से एस्पिरेशन निकली होगी। श्री अरविंद तथास्तु करने अब आए हैं, तो दैट्स व्हाट इट मीन्स। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ प्रोग्रेस? प्रेयर्स और प्रोग्रेस? प्रोग्रेस का नहीं, मैंने सावित्री में लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की है, नॉट लेवल्स ऑफ प्रोग्रेस, एंड दैट्स ए डिफरेंट सब्जेक्ट, वील टेक इट अप समडे। बट वो चेतना के सारे स्तर, मुख्यतः 7 स्तर हैं, 4 ऊपर हैं, 3 नीचे। इसको परार्ध और अपरार्ध। परार्ध मीन्स द हायर हेमिस्फीयर पर, एंड अपरार्ध इज द लोअर हेमिस्फीयर। लोअर हेमिस्फीयर में मन प्राण शरीर हैं, हायर हेमिस्फीयर में 3 जो सच्चिदानंद से निकले, सतलोक, तपोघन लोक या चित्त तपस लोक, और आनंद लोक, और दोनों को लिंक करता हुआ सुप्रामेंटल महरलोक। महरलोक भी बिलोंग्स टू दी हायर। तो ये 7 हैं। तो यहाँ तक की इवोल्यूशनरी जर्नी हो चुकी है, प्रोग्रेस। फिजिकल मैन इवॉल्व इनटू दी वाइटल मैन। फिजिकल मैन कौन था? जो जंगल में रह करके कुल्हाड़ा हाथ में लेकर के कर रहा है, जीवन अपना चला रहा है, फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। देह चिन्ह में उसके अंदर बड़ी नेचुरल हीलिंग होती थी। टार्जन, छाती थंपिंग टार्जन। फिर आया प्राण चिन्ह में मनुष्य। तो प्राण चिन्ह में मनुष्य बिजनेस, दिस दैट, उसने एम्परर्स एंड ऑल दी इंडस्ट्रीज, ये प्राण चिन्ह में, प्राण का विस्तार। फिर आया मनो में मनुष्य, द थिंकर, द सेज, और उसके परे आता है स्पिरिचुअल मैन, जो इन तीनों के परे जाता है। इसी में वो वर्ण आश्रम की व्यवस्था भी है। वर्ण मतलब जो चातुर्वर्ण की बात है। सो ये लेवल सब तक हो चुके हैं। इसके आगे अब स्पिरिचुअल एक वेग रहता था, स्पिरिचुअल माइंड के परे। लेकिन वहाँ पर श्री अरविंद स्पिरिचुअल को भी उन्होंने, कई लेयर्स हैं जिसके थ्रू हमारा इवोल्यूशन होता है। हायर माइंड है, इल्यूमाइन माइंड है, इंट्यूटिव माइंड है, ओवर माइंड है, सुपर माइंड है। सुपर माइंड में आप एंटर कर गए तो आपका स्पिरिचुअल के पार चले गए, यू हैव एंटर्ड इनटू अ डिफरेंट डोमेन। तो ये प्रोसेस है, लेवल्स हैं इन संक्षेप। When I try to understand a situation, I always feel this conflicting feeling to justify my acts or justifying others' behavior, how to go about it, how to rebound from the situation, how to go to. So basically, it is like justification means we don't want to change. So one has to see sincerely. सो दूसरों का तो वी डोंट हैव टू वरी, दूसरों का जस्टिफाई करना, वी आर नॉट, शुड नॉट बी कंसर्न व्हाट अदर्स आर डूइंग। लेकिन अपने एक्शंस को अगर हम जस्टिफाई कर रहे हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हाउ टू गो अबाउट इट, लुक एट सिंसियरली कि अब आप बोले नहीं नहीं दोष तो उसका था, वो मेरे ऊपर चिल्लाया तो मैं भी चिल्लाया, पहले तो वो चिल्लाया, हाँ पहले वो चिल्लाया, पर तुम्हारे पास फिर भी ऑप्शन था। ऑप्शन ए था तुम इंसल्टेड फील करते, ऑप्शन बी था कि तुम उसको क्षमा से देखते, ऑप्शन सी था कि तुम उसको ब्रश साइड कर देते, ऑप्शन 4 था तुम हंसते, मूर्खी चिल्लाते हैं दूसरों के ऊपर इंसल्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर तुमने रिएक्ट किया, ये तो तुम्हारे हाथ में था। तो वन हैज टू सी कि दिस इज नॉट द ओनली वे। जो मैंने किया जस्टिफाई कि इस कारण से, लेकिन मेरे पास और भी तो प्रतिक्रिया करने के तरीके थे। मैंने यह प्रतिक्रिया क्यों चुनी? तो उसमें करना क्या चाहिए, कुछ भी प्रतिक्रिया करने के पहले कुछ देर रुक जाना चाहिए। गिव ए पुट ए पॉज बटन, जैसे मोदी जी ने किया ना अभी, सीज फायर, पॉज बटन दबा दिया, जरूरी था, नहीं तो आगे चल के वो अभी तक न्यूक्लियर वार शुरू हो गया होता। हाँ वायलेट हो रहा है, लेकिन अभी तो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी हो गई ना, बड़ी डेंजरस सिचुएशन में चली गई था ना चीज़ें। वन मोर एस्केलेशन मीन्स बोथ साइड्स गेट अफेक्टेड। बहुत मैच्योर डिसीजन है। और वैसे भी चैत्य पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई व्यक्ति आपसे गिड़गिड़ा के कह रहा है कि भैया बंद करो, तो आप उसके बाद कहें नहीं मैं तेरी ठुकाई करूंगा, ये तो असुर करते हैं। तो देखा जाए तो इन्होंने तो बड़ा देवोचित काम किया कि भाई वो क्षमा नहीं मांगी, पर उन्होंने कहा भैया बंद कर दो, हम नहीं सह पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा, भैया जी हम कुछ ज्यादा ही बोल गए। अब जो भी बात हुई होगी, तो उसको तो बड़े सुंदर ढंग से रामचरितमानस की चौपाई बोली ना, वो डीजीएमओ था, उसने कहा कि क्या क्या हुआ वो तो मैं क्या बताऊं, बस एक चीज बताता हूं,
रामायण की चौपाई, रामचरितमानस की चौपाई कोट की इंडिया के वो लेफ्टिनेंट जनरल ने। हाँ, भय भी न होत न प्रीति, उसका पहला वाला पार्ट क्या है? राम, हाँ हाँ, विनय न मानति जलधिधर, हाँ, गए कई दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय भी न होत न प्रीत। तो अब उन्होंने क्या कह दिया? अब मुस्कुराने लगा कि उनको इतना डरा दिया है कि वो अभी कंपेल हो गए। अब वो ये थोड़ी बोल सकते कि हमने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट कर दिया है। और सच है कि उसके बाद नहीं, वो कौन बोलेगा कि हमने तुम्हारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट किया है? जिसको पता है पता है। नहीं, अब इस पर दे हैव नॉट रिफ्यूज, दे हैव सेड वी डोंट नो। हाँ, वो अलग चीज है। और इस पर अब पूरा वेस्टर्न मीडिया सब जगह आ रहा है। ये केवल एक इंडिया में नहीं बात हो रही है। आई हर्ड सम ऑफ देम। सो अब क्या है ना कि अब उन्होंने साथ में न्यू डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कर दी कि फ्रॉम टुडे एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज वार। बस हो गई बात। तो वही बात है कि भाई अब पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गया मैं कि अंडर जस्टिफाई तो नहीं करना चाहिए, पर यह जरूर है कि हमको चीज़ों को जैसी हैं वैसी देखना चाहिए। अगर हमारे अंदर गलती है तो हमको चेंज करना चाहिए। गलती से मतलब गलती क्या होती है? जो मेरे लक्ष्य के साथ मेल नहीं खाती, एज सिंपल एज दैट। और यदि अगले के अंदर गलती है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो वही जा रहा है गड्ढे में। आपको क्या समस्या है? और अगर किसी ने तुमको क्रिटिसाइज किया है तो देखो कि कोई सही तो नहीं बोल गया। कभी कभी बच्चे भी सही बोल जाते हैं। मुझे ही लगता है, आप जैसे अभी लग रहा है मुझे कि भाई मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। बच्चों की वाणी से भी भगवान बोलते हैं। तो अच्छी बात है, यू हैव टू चेंज। इट्स ए नाइस थिंग टू ऑलवेज ग्रो। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इज लास्ट। वन मस्ट ट्राई टू पे द डेट ऑफ रुद्र। ये श्री अरविंद ने एसेज ऑन द गीता में है, बड़ा पावरफुल है कि भाई शांति शांति ठीक है, पर रुद्र तो अपना किराया मांगने दरवाजे पर खड़ा है, वो शांति नहीं आने देगा जब तक तुम उसका देते नहीं डेट। तो रुद्र का क्या डेट है? अब देखिए, संसार जब फॉर्म हुआ था तो ये सारी ट्रेमेंडस फोर्सेस, विनाशकारी शक्तियों ने कार्य किया था। पृथ्वी बनी, उसके ऊपर एस्टेरॉइड फेंका किसी ने, तो चंद्रमा निकला। ऐसे ही हुआ। रुद्र की शक्तियां तो यही है। कैटाक्लिज्मिक इवेंट्स हुए, धरती फटी, बादल, मतलब क्या क्या नहीं हुआ जब जीवन थोड़ा सा आया। तो रुद्र ने तो हेल्प की है ना। एक हल तो रुद्र ने चलाया, रुद्र की शक्तियों ने। इसीलिए असुरों को बड़ा भाई कहा गया। पहले वे आते हैं और वो सॉइल, क्योंकि मानव चेतना तो बिल्कुल ही, तो असुर आके उद्यम करवाता है। एम्बिशन का अब रोल आ गया, मनी का रोल आ गया। असुर क्या करेगा? वो आपके अंदर एम्बिशन, नहीं तो आप सोते रहोगे। एक प्रीमेच्योरली किसी को बता दो भाई एम्बिशन अच्छी चीज नहीं, अरे वाह थैंक यू सो मच, बहुत मजा लगा, अब मैं आश्रम ज्वाइन कर लूंगा, वहां तो कुछ आपको एम्बिशन नहीं है, अपना काम करो 6 घंटे, उसके बाद मतलब अनलेस वन अंडरस्टैंड कि अंदर में क्या है, वहां कहीं अधिक आपकी श्रम है, तो वो एम्बिशन प्रारंभ में आपको पुश करता है। वो मृत प्राय उसको भी उठा देगा। एम्बिशन, डिजायर्स आपको हिलाता है, प्राप्त करो वो, बाद में आपको उसको छोड़ना पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वॉशिंग मशीन भी चालू होती है, करेक्ट। तो ये डेट ऑफ रुद्र यही है कि ये शक्तियां जो सृष्टि के प्रारंभ में गई हैं वो ऐसे नहीं छोड़ती अपनी ग्रिप, आपको उनको अपीज करना पड़ता है। डेट क्या है? वो कहता है भाई मैंने तो ये बनाया था, वॉशिंग मशीन के एग्जाम्पल ले लें, मैंने सारा सिस्टम बनाया है, आप क्या कर सकते हो मेरे लिए? तो डेट है, आप अपने कपड़े दे दो, मैं धो करके आपको दे दूंगा। आपको जो आपका अंश मेरे अंदर है रुद्र का, उसको मैं शिवत्व में चेंज करने का प्रयास करूंगा। दैट इज द डेट टू रुद्र। कि जब हम, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अपने आप वो शांत हो जाएंगी फोर्सेस, शांति आ जाएगी, शांति आ जाएगी, नहीं।
रुद्र की शक्तियां हमारे अंदर जो ऑपरेट करती हैं उनको आपको कन्वर्ट करना है. जब तक नहीं तब तक युद्ध इत्यादि एक रियलिटी रहेगी. वार, डिस्ट्रक्शन, डेथ, एंड वी हैव टू फाइट. ऑटोमेटिकली नहीं होगी शांति. ये है यहाँ डेथ टू रुद्रा. सो श्री अरविंद सेज ऑन द गीता में, वी कैन क्लोज विद दैट इफ यू टेक आउट डेथ ऑफ रुद्रा. डेथ ऑफ रुद्रा हम लोग उससे रुक जाएंगे. डेथ ऑफ रुद्रा. डेथ ऑफ रुद्रा. देखें तुम्हारा फोन जल्दी काम करता है. ये जियो का क्या है ये? डेट ऑफ रुद्रा मस्ट बी पेड. आ गया, आ गया. ये दो जगह से आया. मैं एसेज ऑन द गीता से पढ़ता हूँ, बेटर है. श्री अरविंद इसको वहां पर रिवील कर रहे हैं जब श्री कृष्ण का विश्व रूप दिखाते हैं. अरे यार ये क्या बंद हो गया. चलो ओके, आई विल जस्ट रीड फ्रॉम. सो माँ से किसी ने पूछा है, स्वीट मदर, श्री अरविंदो राइट्स इन द एसेज, इन हिज एसेज ऑन द गीता, the law of Vishnu cannot prevail till the debt of Rudra is paid. What does this mean? Then the person asked the question, Mother, is the present situation in India like the debt that must be paid to Rudra? Makapura answer with which we will stop. Mother says, here is the whole quotation which I had prepared in advance for those who want to know the reason for the present situation. 65 की बात है, इंडो पाक वार के समय जब लोग शांति शांति की बात कर रहे थे, तो उसकी बात है. आई एम सेंडिंग इट टू यू सो दैट योर क्वेश्चन बिकम्स अननेसेसरी. तो पूरा उसमें क्लियर है. व्हाट इज क्लियर? नो रियल पीस कैन बी टिल द हार्ट ऑफ मैन डिजर्व्स पीस. The law of Vishnu cannot prevail till the debt to Rudra is paid. To turn aside then and preach to a still unevolved mankind the law of love and oneness? Teachers of the law of love and oneness there must be, for by that way must come the ultimate salvation. But not till the time spirit in man is ready can the inner and ultimate prevail over the outer and immediate reality. Christ and Buddha have come and gone, but it is Rudra who still holds the world in the hollow of his hand. And meanwhile, the fierce forward labor of mankind, tormented and oppressed by the powers that are profiteers of egoistic force and their servants, cries for the sword of the hero of the struggle and the word of the prophet. Powerful, self-explanatory. अच्छा, जय माँ.